थोड़े में मुझे हृदय में बस गया कि हाँ, बहुत दिन के हमारा वो दोस्त था, ये मित्र था, हम उनके साथ थे, तब तो हृदय में बसा। उन्होंने महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलाया और खासकर जो हमारे इस क्षेत्र में अवरेठी बनने लगी है, वो भारती दीदी की देन है। मूल आत्मा के साथ जिस तरह से महिला आंदोलन और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए न्यौछावर करने का काम किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जो हमारी भारती दीदी जी ने हमको अच्छी प्रेरणा दी है, अच्छी रास्ता बताई है, उसी पर हम निर्भर हैं, उसी पर उन्हीं की बताई पर रास्ता पर हम लोग चलते हैं। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए। ये सर्वाइवल का स्ट्रगल है। मैं काम नहीं करती तो पता नहीं अब तक क्या होता मेरा, मैं तो मर गई होती या कुछ और कर लिया होता। मैं काम में सब भूल जाती और इन लोगों को देख के मुझे इतनी स्ट्रेंथ, ये लोग मुझे बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। चाहे मैं सहारनपुर में गाँव में महिलाओं की बात से लेके और चाहे ये फील्ड के लेके बात से लेके, इन्होंने मुझे इतनी ताकत दिया है, इतनी ताकत दिया है। मैं कभी कभी मेरा समस्या इनकी समस्या देख के छोटा लगने लगता है। लगता है क्या मैं परेशान हो रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, इनकी जिंदगी में तो इतनी परेशानी है फिर भी हंसती हैं ये लोग। वो जिसकी दीद में लाखों मसरतें पिन्हा, वो जिसकी दीद में लाखों मसरतें पिन्हा, वो हुस्न जिसकी तमन्ना में जन्नत पिन्हा, वो जिसकी। Bharti ji remained a dedicated and militant crusader of the women's rights movements. She started her political struggle from her student days. During the JP movement in 1973-74, she was actively involved in the Chhatra Yuva Sangharsh Vahini. In the same period, she was introduced to revolutionary thoughts. Influenced by thinkers such as Bhagat Singh, Dr. Ambedkar, Dushyant Kumar, Nikolai Ostrovsky and N.A. Ostrovsky, she became part of different movements. Her teachers, Randhir Singh and Professor Manoranjan Mohanty, also oriented her towards movements. She began her active involvement on women's issues from 1976, the year when she joined Action India, a voluntary organization working on women's rights. Being instrumental in forming organizations such as Tri Sangharsh Samiti, Saheli and Sabala Mahila Sangh, she contributed and played an important role in the women's movements in Delhi. She was also involved in anti-communal struggles in Delhi. जितने भी लोग हैं जो इस अभियान में जुड़े थे, आज हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो गया है कि स्टेट कम्युनल है, पुलिस कम्युनल है और मीडिया भी बहुत कम है। किसी ज़माने में इस राह गुज़र से गुज़रा था किसी। 1982 was a turning point in her life. She moved from issues of urban women and got involved in setting up the struggles of rural women workers, especially those of the forest-based women community. Associating herself with the UP Saharanpur-based Vikalp social organization, she started working on women's health issues in the backward Ghar area in the foothills of the Shivalik mountain range. From there, she gradually started working on issues of the forest-based women communities and of the landless. It
was the result of these struggles that the women's right to minor forest produce was recognized in the Ghar area. This was later coded in the rules. Bharti ji played a key role in setting up these struggles. In the history of forest rights movement, this was probably the first time. It was from such beginnings that the question of the independent right of landless women rose in Uttar Pradesh. Along with the setting up of the UP Land Reforms and Labour Rights Movement Committee, she played an important role in spreading this struggle throughout Uttar Pradesh. She advocated for women's right to forest produce and natural resources. A few years later, independent rights were given constitutional acceptance with the passing of the Forest Rights Act in 2006. She was active in setting up of the National Forum of Forest People and Forest Workers in 1998. She was also instrumental in the emergence of Dalit and Adivasi women leadership under this movement all across India. उजड़ेंगे नहीं उसके वहाँ से। वो सोचता है कि वो जागीर है, वो किसी को वहाँ घुसने नहीं देगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वो हमारा नौकर है। हमारे पैसों से उसके तनख्वाह जाती है। वो हमारे हित में काम करने के लिए आया था। आज वो अपने हित के लिए काम करता है, तो हम उनको उनके वहाँ से उजाड़ेंगे और हमारे जो जंगल में हमारा जो अधिकार है, इस अधिकार की बहाली हम खुद करेंगे। महिला आंदोलन, महिला उत्पीड़न की आवाज़ और बराबरी के उस आंदोलन को दिल्ली के संगठनों के माध्यम से उठाकर उन्होंने उस आखिरी श्रेणी में रहने वाली महिला की जो जीविका उनके मन में थी, उनके अधिकारों की लड़ाई को लेकर, उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए बारीक से बारीक बिंदु पर अपनी बीमारी के बावजूद भी वो सक्रिय एक कार्यकर्ता के रूप में उनके बीच में कई घटनाओं में न केवल गई बल्कि उस आवाज़ को बुलंद करने में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया। आज जो आंदोलन महिला आंदोलन के रूप में खास तौर से आदिवासियों में गरीब श्रमजीवी महिलाओं के बीच खड़ा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान भारती दी का रहा है और बहुत सी महिलाओं को उन्होंने नेतृत्वकारी क्षमता प्रदान करने का काम किया है। मूल आत्मा के साथ जिस तरह से महिला आंदोलन और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए न्यौछावर करने का काम किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हम ऐसी उस महान आंदोलनकारी जुझारू महिला को सलाम करते हैं। मन लागो यार फकीर में, 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 मन लागो यार फकीर में। आपको चेतावनी देने के लिए आए, आप आपका कानून लागू करो। मैं ये नहीं बोलूंगा आप लाखों का संख्या में दिल्ली में दोबारा आवे, आप लाखों का संख्या में अपना अपना जगह में कब्जा का काम शुरू करेगा। सरकार का कानून चलाने की नहीं देगा। सरकारी है, जो जंगल सरकारी है। लहर लहर लहराए, इनकलाब जिंदाबाद कहीं कहीं के फहराए। झुके न झंडा ई डगरिया में, झुके न झंडा ई डगरिया में, हम आदिवासी जात जगरिया के, हम आदिवासी जात जगरिया के। डॉक्टर बिनियन अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद कहीं कहीं के चिल्लाए। डॉक्टर बिनियन अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद कहीं कहीं के चिल्लाए। Bharti Rai Chaudhary played a pioneering role in initiating the struggle for women's land rights. Based on her interactions with landless women, she had developed an understanding of their core issues.
women's right to land and property remained within the ambit of family property. But what would happen to the landless families who did not have any property? The proportion of women laborers in agricultural work is much higher than men. In 1999, a report on this issue made it amply clear that in community property, landless women must have their independent share. Thus, militant struggles were launched in UP and Uttarakhand on the issue of land and forest rights, and the struggle is now in a strong position. 10 years after her first report, in 2010, Bharti ji wrote an article in which she raised certain basic issues. Despite her acutely failing health then, she clearly put across her views on landless women's rights to land and natural resources and very strongly raised the demand for a fresh study into the issue of land rights for poor landless women. On the issue of women's right to land, the struggle has gathered momentum in the last 10 years. In Kamur region, about 20,000 acres of forest lands have already been reclaimed by Adivasis and Dalits. It is noteworthy that all these movements and reclamations were done under the leadership of women. Looking back at the revolutionary changes in the nature of the movements over the past 10 years, it is very important to understand how and why the same women who could not see beyond family property as their only source of land are now collectively looking to reclaim their ancestral land from the forest department and other government departments and collectively cultivating them to assure themselves of their livelihood and dignity. Whether the women leaders and women in general who have participated in such struggles have any plans to ensure that the land remains in their control or have become satisfied and complacent with their current victories needs to be understood. This and other allied questions do demand a fresh study and analysis. Bharti ji had talked about her views on women's land right movements in an interview in August 2007. पूरे देश में महिलाओं की जो राजनीतिक चेतना बढ़ रहा है, ये अब इस चेतना में अब वो दखल देने लगी है, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, उसमें दखल दे रही है। और वो अब ये जो परिस्थिति है जो महिला बता रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, अब जो महिला एक बार राजनीतिक रूप से सचेतन हो गई है, जागरूक हो गई है, अब वो पीछे नहीं हटती है, पीछे हट ही नहीं सकती है। क्योंकि आज से तुम देखो 20 साल पहले तक, 20-25 साल पहले महिलाएं पीछे थी, महिलाएं कभी आगे नहीं आई, महिलाएं हमेशा पिसती रही, मरती रही, लेकिन उसको कभी आगे आने नहीं दिया गया। अब वो आगे आ रही है तो एक साथ कई चीज़ें कर रही है। एक साथ वो कर रही है कि वो पूंजीवाद, सामंतशाही और पुरुष पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दे रही है। और ये जो चुनौतियाँ हैं, ये जब जागरूक होकर ही लोग दे सकते हैं। अब ये अधिकार की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, इसको कोई नहीं पीछे कर सकता है। और दूसरी बात है कि महिला जो देख रही है आगे वाली पीढ़ी के लिए, वो अपने आगे वाली पीढ़ी देखती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती है, वो अपने आगे वाले बच्चों के लिए लड़ती है, अपने बच्चों के लिए लड़ती है जो चाहती हैं कि वो बच्चे भूखे ना रहे, उनके पास एक ज़मीन हो, बच्चे भूखे ना मरे, पढ़े लिखे हों, उनके सही वक्त पे इलाज हो जाए, वो सम्मानपूर्वक जिए। ये जो चीज़ है ना, ये उनको ताकत देती है बहुत भयंकर, और वो किसी से नहीं कभी झुकती है। ये हमने हमेशा देखा कि जब से ये महिलाएं आगे आ रही हैं, नेतृत्वकारी भूमिका में आ रही हैं, ये जो महिलाएं हैं ये कभी समझौता नहीं करेंगी, ये अपने अधिकार की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। जंगल विभाग हमको हमला करता है, हमारा अधिकार नहीं लेने देता है, हम अपना अधिकार लेता है तो जे हमला करते हैं हमारे साथ। जंगल में जाना नहीं दे तो हमारा अधिकार है, हम तो जाएंगे। जे क्यों हमला कर रहे हैं हमारे साथ एक सर फोड़ दिया कुतवाल ने, उनने घूस दिया तो कुतवाल ने उनको साथ दिया। क्यों दिया? हमारे आदमी को अभी तक नहीं पता है, ना पता है, हमारे आदमी आज तक नहीं है। और कागदा कहाँ डाली है, हम तो लेके जाएंगे अपने आदमी को, हम छोड़ेंगे ना, चाहे यहाँ रात कटे चाहे दौस कटे। कुतवाल को जेल भेजेंगे, हम रखा मांगना है यहाँ पर। कुतवाल जो कोई गुंडागिर्दी करेगा तो उसको रियायत हम बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ना करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे हम रियायत, तो हमें करना ना है। कुतवाल कही मैं अंडू हूँ, मेरा नाम अंडू है, तो औरत कही कि हम बदियों करने जानते हैं, तो कौन कहेगा ऐसे? जो कुतवाल है वो तो हमारे आदमी इनके भेड़े डालते हैं, क्यों डाल रही है?
जमावे बादे आई बकेना चेतना मंच पर अपना कला देखौलू बहना सुंदर फिल्म बनौलू बहना नई दुनिया बसौलू बहना मनमोहन के बैठैलू अबू के ना हो दीदी अबू की ना हो दीदी अबू की ना हो ना संगठन बनावे बदो को बनावे बदे मीटिंग बैठावे बदे अबू की ना हो बहना अबू की ना। हमारे समुदाय के पूरे गांव के 884 एकड़ का रकबा है और उसमें हमारे अधिकतर धान और गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगाते हैं। उसी पे हम लोगों का आजीविका चलता है। इसे पुरजोर टाइगर बना, पुरजोर टाइगर बनने के बाद में हमारे लोगों का कुछ भी नहीं, कोई भी मतलब जो है घास फूस जलूनी लकड़ी के लिए सब मना कर दिया कि रास्ता चलना मना कर दिया। अब जब 350 परिवार बने तो ये फॉरेस्ट वाले जब से यहाँ पर 1980 से कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, तुमको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी। न्यायालय में वहाँ से केस 2003 में जजमेंट हो गया कि तुमको यहाँ से ज़मीन खाली करनी पड़ेगी और 3 महीने का समय कोर्ट ने दिया। तो 350 परिवार अगर आज कोर्ट हमको यहाँ से हटाना चाहती है तो हम वहाँ 350 परिवार कहाँ ले जाके बसाएंगे? कि हम लोगों के एक समय वो रहे कि अगर हमारे लोगों का अगर 24 घंटा बीत जाता तो हम लोग सारे गांव के आदमी यही सोचते कि हम तो 1 साल बीत गया हमारा। इतना हमें मजबूर कर दिए रहे ये वन विभाग कि लगातार आए दिन ये करना वो करना, दुनिया के सारे बवाल। हम लोग अगर एक डल्लप जलौनी लकड़ी अगर लाते हैं तो 1000 से 1200 रुपये ये लेते थे वन विभाग, और फूस निकालने की प्रक्रिया जब चलती थी तो प्रति परिवार से 300 रुपये तक ले लेते थे। हम लोगों के यही लालच देते थे कि आप बिगाड़ कीजिए, इसके बदले में हम लोग जलौनी लकड़ी या घास फूस देंगे। उसके अतिरिक्त भी हम लोगों से अवैध वसूली कर लेते थे। संघर्ष तो अभी बहुत जारू है, क्योंकि अभी तो हमें अधिकार पत्र मिले हैं खाली भूमि और भूमि आवास का, मगर ये सारे जो जंगल से वन लघु उपज वाला हमें अधिकार है वो तो बहुत ही जरूरी लेना है। कानून मिलने के बाद में हमें बहुत आसान मिला, इससे हमें बहुत बड़ी ताकत मिली, ताकि हम लोग एक सौतेले बच्चे रहें। और हम लोग सौतेले बच्चे जैसे व्यवहार हमारे साथ में होती थी, कोई कानून कायदा नहीं ये लोग करते थे। लेकिन अब जो है, अब हमको कानून मिल गया है तो हमें बल मिल गया है। अब यही लग रही है हमें और अच्छा मिला, हमारे बाप और महतारी हमको मिल गए हैं। अभी तक तो हम लोग अनाथ थे, लेकिन अब अनाथ नहीं रह गए हैं। अपने संघर्ष अभी भी हमारी जारी है। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम नूर आलम है। वन गुर्जर समुदाय के बीच में से मैं हूँ, जिसके बारे में आज हमारे लोगों को उजाड़ करके नदियों में फेंका हुआ है। हमारे जानवर, एक घास होता है जिसको ललटैना कहा जाता है, उसको खा करके नदियों में मरे पड़े हुए हैं, जिनके बारे में अखबार छप रहे हैं, और सरकार कोई भी उस चीज को देखकर एहसास नहीं कर रही है। हमारे बच्चे ओस में और नंगे आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, जिस नदी के अंदर आज कम से कम ही बहुत पानी बह रहा है, और सर्दी की वजह से ना कोई साया है ना कुछ, उसमें परेशान हाल है। इस तरीके से सैकड़ों साल से रहने वाले वन गुजरों को जंगलों से निकाल करके ऐसी जगहों में फेंक दिया जहां उनका कोई ठिकाना नहीं। उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके जानवर, जिन जानवरों पे वो आश्रित थे, जिन जानवरों की रोजी पूरी जिंदगी उन्होंने खाई है, जिन जंगलों की हिफाजत की है, जंगल के अंदर कोई तस्कर गया उसकी शिकायत की है, या कोई लकड़ी काटने वाला गया है उसके लिए कहा है। तो जंगल के अंदर जब हम किसी बात के लिए कहते हैं तो उसको जंगलात वाले ये कहते हैं, अजो ना आगे मत बोलना, आगे बोलोगे तो हम तुम्हारे इतने 10,000 के 50,000 के जुर्माने काट देंगे, या तुम्हारे ऊपर शेर की खाल रख करके, या हाथी का दांत रख करके, या
हिरन का सींग रख करके तुम्हारे ऊपर ऐसे जाल में फंसा देंगे, तुम ताज जिंदगी अपनी जमानत नहीं करवा सकोगे और तुम छूट नहीं सकोगे। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। मैं अपने जगह पे मझौली गांव है, उस जगह हम लोग पूर्वज का जो जगह जमीन है उसमें हम लोग काबिज हैं और लड़ झगड़ के ही अपना कानों की खेती गृहस्थी कर रहे हैं। वन विभाग हमको बहुत आपत्ति कर रहा है, मार धर भी करा, महिलाओं के अनेक प्रकार के गाड़ी, अनेक प्रकार के देखिए मार धर कर रहे हैं, कुदा कर, मैंने बहुत महिलाओं के तो कुदा कुदा के मारे थे, घर कितना गिरा दिए, अब बहुत बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग उसमें काबिज हैं और वही में कमा खा रहे हैं, रहर है, मकई है, सवा, मिजरी, कोदो, मेड़ो, उड़दा, ये सब कुर्थी उर्थी ये हम लोग सब खाते हैं पूर्वज से, आज भी खा रहे हैं। वही हम लोग का वही अनाज हम लोग को पचित है। जंगल से जितना उपलब्ध है, हरा बहेरा है, औरा है, प्यार है, तेनू पत्ता है, ये सब हम लोग उपलब्ध उससे लेते हैं। उसी से मने जो भी इधर काम करते हैं, नमक तेल चलाते हैं, खाते पीते हैं, दुख बीमार होता है, उसी से भी जड़ी बूटी लेकर हम लोग अच्छा होते हैं। बाकी वन विभाग हम लोग एकदम खदेड़ने चल रहा है, मारने के लिए, हटाने के लिए। वही वन विभाग एक जायका को ले आया जापान से, उसको भी साथ लेकर इतना बर्बाद करवा रहा है। बाकी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले कुछ हो जाएगा, हम लोग मरी मिट्टी उसी से हो जाएंगे। हम अपना हक मलिकाना ले रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा पूर्वज का धन है। चाहे भले कुछ हो जाएगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वहीं अपना रहेंगे, अपने परिवार पूरे रहते हैं और रहेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। क्या हो रहा है, सब जायका जो कि बिगाड़ रहा है, घर दूरा हमारा सब तोड़ दिया, झला झोपड़ सब उतार दिया है। अब का हो चाहिए, हमन तो डटले है ये ही, एक बुआ लकड़ी तक नहीं लाने देता है ना, और झुरी काठी भोंगड़ी घर दूरा नहीं बनाने देता है। यही परेशानी है भाई, तेहन में सारे के डटे हैं, करो परेशानी कितना करोगे। हाँ, बाकी हम रहेंगे यहाँ। हाथ हाथ जाए हर कोई, अनहत जाए न कोई, हाथ 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 जाए हर कोई, अनहत जाए न कोई, हाथ अनहद के बीच में रहा कबीरा सो। इस जनपद में खासकर दलित और आदिवासी वंचित समुदाय जिनके साथ लगातार ज़मीन को लेकर के हमेशा छलावा हुआ है। मुख्य रूप से इस बुंदेलखंड का, खासकर इस मारकुंडी रेंज पे जो आंदोलन शुरू हुआ, ये सन 1997 से लगातार भूमि आंदोलन यहाँ पे तेज़ी पर पकड़ता गया। देश में तमाम उन आंदोलनों की एक मिसाल थी, उसी मिसाल को कायम रखते हुए वर्तमान में इस जारो माफी गांव में 1960 में रूस की पद्धति से बनाई गई कोऑपरेटिव समितियां जो थी, उन समितियों में दबंग लोगों का कब्जा हो जाने पर यहाँ के आदिवासियों ने हिम्मत नहीं हारी, और आज उसका परिणाम ये है कि उन आदिवासियों ने सुश्री भारती चौधरी का नाम लेते हुए भी उन ज़मीनों पर आज वर्तमान में काबिज हैं और उन ज़मीनों पर लगातार खेती करने शुरू कर दिया है। दलित लोग यानी आदिवासी लोगों का कब्जा था, बीच में सर ये सोसाइटी बन गई। आज 15 साल से हम लोगों के यहाँ पट्टे हुए और 10 साल तक हम लोग नाकाम रहे, और हमें पिछले वर्ष यहाँ कब्जा मिला, और आज भी हम लोग काबिज हैं। और यहाँ जो सामंत लोग हैं वो कहते हैं हमारा है, लेकिन हम लोगों के नाम पट्टे हैं, हम लोग ही काबिज हैं इसमें, और मुकदमा इसमें चल रहा है सर। ये जब से अधिनियम ये वन कानून चला है तभी से हम लोगों को यहाँ कब्जा प्राप्त हुआ है। वहाँ
पहले ग्राम समाप्ति, इसके बाद सहकारी के द्वारा जो है एक पंडित जी लिए थे। हमारे गांव के लगभग 85 आदमी सामूहिक खेती वहाँ कर रहे हैं और वो पिछले साल से नहीं किए, उसमें गल्ला पैदा किए। इन साल भी अभी बुआई शुरू है, वहाँ पे जुताई शुरू है। और ये हमारे वहाँ पे जितने हैं तो घर मकान आज भी डिडवार बने हुए हैं। 2000 बीघा ये यहाँ से वहाँ पर ये हमारी जमीन है। अब यहाँ ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन हो रहा है, तो ये सब कोई संकल्प लो कि गांव वाले मिल करके अब उसमें हम कब्जा करेंगे उस जमीन में। कहीं देखा नाम निशानी, कहीं देखा खतरा, कहीं देखा नाम निशानी, कहीं देखा खतरा। एगो मुद्दा लेला भाई बन जाई यात्रा, एगो मुद्दा लेला भाई बन जाई यात्रा। कभी कानून की बात करे, कभी करे न खड़ा, कभी कानून की बात करे, कभी करे न खड़ा। कभी डरे भागे हमसे, कभी डरे जबरा, कभी डरे भागे हमसे, कभी डरे जबरा। एगो मुद्दा लेला भाई बन जाई यात्रा, एगो मुद्दा लेला भाई बन जाई यात्रा। अब खातरा वाला जमीनिया बा मन के भला खातरा हो, जब खातरा सही बाकी हम मन के होवे के चाहिए। मेरा नाम है हुलसी, ग्राम दरमा, नई बस्ती, भारतीय रायनगर। जब सभी महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर के इस ज़मीन पे हम लोग काबिज जमाने आए, तो फॉरेस्ट वालों के साथ पुलिस यहाँ पे कम से कम 15-15, 16-16 गाड़ियाँ आती थी। और जब 2004 22 जुलाई को यहाँ तक कि फॉरेस्ट वालों ने पुलिस वालों को बुलाकर उस महुए के पेड़ के नीचे बातचीत बहुत काफ़ी देर तक चर्चा होती रही। निहत्था हम आदिवासी थे, वो सब फायरिंग कर के चलने लगे और हम लोग उन सबों का पीछा किए जहां ये ईंटा, पत्थर और बालू मिट्टी से, और वो सब गाड़ी में भाग निकले। और हम तुरंत सभी महिला पुरुष महिला शक्ति जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा सभी महिला पुरुष एक साथ लगाते हुए घर आए। बहुत से हम आदिवासियों के ऊपर विपत्ति आया, सभी महिला पुरुष मिलकर के अपना संघर्षशील किए और खेती आज तक से हम लोग काबिज करके खेती कर रहे हैं। जब भी हम लोग डीएम और एसपी के पास जाके अपना ये सामूहिक खेती के विषय में बात चर्चा रखते थे, तो कि तुम लोग क्या सामूहिक खेती कर लोगे और लड़ाई नहीं करोगी, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं। हमारे पास हम अनुसूचित आदिवासी महिलाएं और पुरुषों के पास 75 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके वजह से हम लोग सभी महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होके हम लोग यही सोचे कि हम लोगों को सामूहिक ही खेती करना अच्छा है। मैं तो जहाँ देखूं मोरे संग है माँ रंग है, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखनी रे, मैं तो ऐसो रंग और देखनी रे, मैं तो ऐसो रंग और मेरे साबर आलाओगी, ऐसो रंग और मेरे खाजा मुड़ी, ऐसो रंग और नहीं देखनी। देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश बदेश में, हाँ देश बदेश में, देश बदेश में, देश बदेश में। आजादी के 60 बरस बाद सन 2006 में ये पहला कानून है जिसमें वन अधिकार शब्द का इस्तेमाल है। इससे पहले जितने भी कानून थे उसमें वन कानून था, उसमें सरकार और वन विभाग के हाथ में सब कुछ था। ये पहला कानून है जिसमें लोगों को अधिकार दी गई है और वो भी मान्यता है, क्योंकि समाज एक अधिकार को मानते रहे हैं पुराने जमाने से, उसको मान्यता दी है। और ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे जो बोल रहे अगर अधिकार दे देंगे जंगल खत्म हो जाएंगे। जंगल तो तुमने पहले ही खत्म कर दिया। इसीलिए साथियों, ये सरकार
ये व्यवस्था नहीं चाहते आपके पास जाल जंगल जमीन की अधिकार हो। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी मूल निवासी इस बारे में जानते भी नहीं थे, आज वो जागृत हो रहा है। आज आप लोग जागृत हो रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं कि मुद्दा है, अपनी मुद्दा को पहचान रहे हैं आप लोग। और जब लोग मुद्दा पहचान लेते, पकड़ लेते, तो दुनिया उसके हिसाब से चलती। इसे कोई नहीं रोक सकता। आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप अगर चाहेंगे तो कोई अधिकारी, कोई अफसर, कोई सरकार की बस की बात नहीं कि इसको रोक सके। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें आने वाले दिनों के हमारे जो बच्चे हैं वो इज्जत से जिए, सम्मान से जिए, उसको शिक्षा मिले, उसको स्वास्थ्य मिले, उसको रोजगार मिले, ताकि वो आगे बढ़ सके। शहीदों को लाल सलाम। जो रंग रंगे आगूड़ा रंगया, जो रंग रंग आगूड़ा रंगया, मुर्शिद वाली डाली वो यार, जो रंग रंग आगूड़ा रंगया, जो रंग रंग आगूड़ा रंगया, मुर्शिद वाली लाली वो यार। What has changed in perception and consciousness of women relating to land rights in the last 10 years? What were the feelings or doubts of the women in Sonabhadra who settled on reclaimed land at the beginning of their reclamation struggle? Do the women consider land as a means of sustaining livelihood? Why did the women feel that only collective farming could ensure their continued control over land? Have the women thought of strategies to ensure continued benefits for their future generations? What do the women think on protecting the rights won by them for the coming generations? How many women have taken advantage of the MGNREGA Act? If not many, why? Did they think that no benefits would really accrue as the government would not keep its word? What were the wage labor rates for women 4 years ago? And what is it now? If land has been given, in whose name is it registered and who has control over it? Who decides what crops are to be cultivated? Is it only the male members who decide? If women had control, would they have made different choices? Who were the first, men or women, to decide that collective farming is the only way of farming? Who has the control on the decisions taken for the communities? इस सबको ये जानकारी के तहत ये कानून हम खुद अपने आप पर, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने जिला में, अपने तहसील में, अपने राज्य में, जब तक इसको नहीं लेंगे तब तक कानून नहीं मिलेगा। हम भी तो इंसान हैं, हम अपने फायदे को अपने हाथों में लेने के लिए उठ खड़े होंगे और ये काम आपको बहुत 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 जल्दी करना पड़ेगा। ऐसे मीटिंग में बैठ के ये कानून हासिल नहीं होने वाला है। हम लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर जो है लोगों ने वनाधिकार कानून आने से पहले ही उसको लागू किया। वनाधिकार के तहत इन सारी ज़मीनों को वन विभाग के अवैध कब्जों से छुटाना और उनके गैर कानूनी जो कब्जे से उसको अपने दखल में लेना, तो इसलिए ये किसी भी तरह से हम इसको गैर कानूनी नहीं मानते हैं। ये एक राजनीतिक संघर्ष है और एक ज़मीनों को पुनर्दखल करने का अभियान है जिसका आधार और जिसकी ताकत हमको वनाधिकार कानून से मिली। इस कानून में जो एक जनवादी जगह, एक परिसर जो मिला है लोगों को, उसके अंदर एक जो उसके तहत जो है लोगों ने अपनी बातों को कहना और उनको एक बात करने का मौका जो दिया है इस कानून ने, वो बहुत अहम है। जहाँ पे वन विभाग ने सामंती ताकतों को सीधे सीधे ये कहा कि ये महिलाएं जो है जंगल पर कब्जा कर रही हैं, आप लोग आइए, हम आपको ज़मीन देंगे और आप इन महिलाओं के साथ बलात्कार करिए। और इसकी जो है पूरी योजना को विफल करने के लिए खीरी के दिलावर नगर में महिलाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो प्रशासन के जब दखल के बाद जो है वो सब गुंडे यहाँ से भागे। उसके तमाम सबूत हमारे पास है। बिल्कुल चेतावनी दे दी है कि अब वन विभाग के तमाम दफ्तरों से वन विभाग को भगाया जाएगा
और वहाँ पर वनाधिकार कानून और वनाधिकार समितियों के दफ्तर बनाए जाएंगे। इसलिए यहाँ की महिलाएं इस बात का नारा दे रही हैं कि वन विभाग भारत छोड़ो। वन विभाग भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वन विभाग भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इनकलाब तेरे गम को जाके तलाश, तेरे जानसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे राह गुजार चले गए, तेरे गम को जाके तलाश में। तेरे गम को जाके तलाश में। ये हम थे जिनके लिबास पर सरे रासिया ही लिखे गए। ये हम थे जिनके लिबास पर सरे रासिया ही लिखी गए। यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म में यार चले गए। यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म में यार चले गए। हम तुम्हें